नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी को घेरा है। ये बड़ी जानकारी, सत्ता के लिए मजबूत नेता का भ्रम जाल फैलाया उन्होंने ये लिखा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब यही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बनी है। चीन के दबाव में आ गए हैं पीएम। ये कहते हैं यहाँ पर राहुल गांधी, चीनी हमारे इलाके में है, लेकिन पीएम इनकार कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला बोला है और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बकायदा एक और वीडियो के जरिए सरकार से सवाल पूछे। जोरदार हमला एक बार फिर से बोलते हुए पीएम पर राहुल गांधी का ये बात। चीन बहाना, सरकार पर निशाना और लगातार राहुल गांधी इस मसले पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से इसी क्रम में सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now, at the tactical level, they are trying to improve their position. Whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake, the idea is to position themselves. They are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India. And they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say, absolutely not, I'm the Prime Minister of India, I do not care about my image, I'm going to take you on? Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. And the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. चलिए, फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पर भी बोलते हुए कहा कि व्यक्ति के बदलने से नहीं, नीति बदलने से परिवर्तन आता है। भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी विपिन ने क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया। ऐसे में तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की ओर हमलावर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, प्रदेश की सियासत जो है जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी दौर भी, जो बाई इलेक्शन होने उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कांग्रेस की अगर बात करें तो बड़ौदा चुनाव को लेकर कितने तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है और क्या कुछ किस रणनीति के साथ कांग्रेस उतरने वाली? कांग्रेस पूरी तरह से है बड़ौदा इलेक्शन के लिए और वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसमें अच्छा उम्मीदवार देंगे हम, जो बड़ौदा के लोगों से सलाह करके हम उम्मीदवार देंगे और वो उम्मीदवार ऐसा सशक्त उम्मीदवार देंगे
जो फिर से जीतेगा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कल मुख्यमंत्री की ओर से हुड्डा साहब एक पत्रकार वार्ता की गई, 2 अध्यादेशों का जिक्र उनके द्वारा किया गया। उनका ये कहना था कि किसानों की आय, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, अब किसानों की आय को दुगना करना हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसके लिए सबसे बड़ा काम जो किया जाएगा वो व्यवस्था परिवर्तन का किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? भाई जो किसानों का आय 2022 में होनी थी डबल, अब तक क्या हो गया? 2 साल में क्या करेंगे? उसके लिए तो किसानों की जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ानी पड़ेगी। किसान की आय जब भी बढ़ सकती है जब लागत स्वामीनाथन फार्मूला लागू किया जाए, लागत जमा 50% दिया जाए। बाकी ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं ये खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसानों के हित में नहीं है। क्योंकि मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई एमएसपी की चर्चा नहीं है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग एक अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की में एमएसपी और फिर उनमें जो डिस्प्यूट होगा उसमें कौन वो करेगा? वो डिप्टी कमिश्नर करेगा, एसडीएम करेगा, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में जा नहीं सकता। तो ये मैं समझता हूँ किसान के हित में नहीं है। इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। और क्योंकि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में और हरियाणा में बहुत अच्छा बना हुआ है और एक तरीका जो है किसान के हित का भी है। इसमें तीनों को ऑर्डिनेंस है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, आड़ती है, चाहे लेबरर है, इन तीनों को तकलीफ होगी, इनका नुकसान होगा। तो इस वास्ते बेरोजगारी बढ़ने का वो है। और ये जो चल रहा था हरियाणा पंजाब में कोई ठीक है। सब एक बड़ा मुद्दा ये आया कि कर्फ्यू लगाने की तैयारी में सरकार है। गृहमंत्री ये कहते हैं कि हम एनसीआर के जो जिले हैं वहां पे कर्फ्यू लगाएं, लेकिन सरकार अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट रूप जो है उसको रुख स्पष्ट नहीं कर पाई। उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लगाने की जरूरत नहीं। क्या समझते हैं तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, तो कोई नई बात नहीं है। जब ये शराब का घोटाला पकड़ा गया था तो गृह मंत्री का क्या बयान था कि हम एसआईटी बनाएंगे, और निकला क्या? एसईटी। तो ये ऐसा ही मामला है, तालमेल से चलनी चाहिए सरकार, क्योंकि ये जो बीमारी है फैल रही है, इसमें पूरा सचेत रहना चाहिए, पूरे कदम उठाने चाहिए, इसमें लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ा हादसा हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर आपने जो है सरकार को चेताने का काम किया। लगातार आपने कई इलाकों का जिक्र किया, सोनीपत, रोहतक, तमाम जगहों पर। क्या समझते हैं अपराध जो है, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा संरक्षण मिल रहा है या फिर उनका काम जो है वो ज्यादा फल फूल रहा है? वो तो खुद डीजीपी की स्टेटमेंट आई थी कि हरियाणा जो है अपराधियों की शरणार्थी बन चुकी है। यूपी से, दिल्ली से जो अपराधी हैं यहाँ आके शरण लेते हैं। तो वैसे भी जो बेरोजगारी है और कई कारण है, लेकिन अपराध चरम सीमा पर है और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है। विधानसभा का सत्र जो है अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कौन से प्रमुख वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है विधानसभा के अंदर जाएगी? ऐसी परिस्थितियों में जब कोविड भी है, व्यवस्था है, विधानसभा की ओर से कहा गया कि हर विधायक के लिए अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग से किया जाएगा, तो आपके वो कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे आप अपनी किसानों का लगाओ, आज किसान बर्बादी कगार पे खड़ा है, बेरोजगारी इतनी बेअंशा बढ़ रही है, कोई अंदाजा ही नहीं है। हरियाणा आज नंबर 1 पर हो गया। कहाँ तो हरियाणा विकास में नंबर 1 पर था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर हो गया। इस प्रकार से वो जो व्यापारी है वो परेशान है, आप सब खुद देख रहे हैं। कर्मचारी आप सड़कों पे रहते हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ग जो है वह कानून व्यवस्था की तो आपने मैं बता ही चुका क्या हालात हैं। तो कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और मुद्दे ही मुद्दे हैं। आखिरी सवाल आपसे, ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बड़ौदा उपचुनाव से बिल्कुल ठीक पहले। क्या समझते हैं, क्या चुनौती समझते हैं, क्या आने वाले समय में क्या कंपटीशन इनके आने से बढ़ेगा आपके लिए कांग्रेस? ये तो पार्टी का काम है, उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। पहले जब ये बड़ौदा में इलेक्शन हुआ असेंबली का तो बराड़ा साहब थे। व्यक्ति बदलने से नहीं होता ना, नीतियों पे होता है। इस सरकार का क्या नीति है, आज कौन से वर्ग के हित में काम किया है, आज किसान खुश है कि नहीं खुश है, आज रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं, लोग सब समझते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं धनखड़ साहब को।
इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनका ये कहना है कि इंसान बदलने से नहीं, नीतियां बदलने से जो है उसमें व्यवस्था में परिवर्तन आता है। ऐसे में सीधे तौर पर कटाक्ष और हमला जो है वो सत्ता पक्ष यानी कि सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से साधा गया है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले बिजली मंत्री। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि कोरोना अब जीवन का हिस्सा बन चुका है और लोग सावधानी बरतें। आपको ये बताएं कि लगातार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए और इन सब के बीच बिजली मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी। केंद्र ने किसानों के हितों को लेकर फैसला लिया है, जिसका उन्होंने जिक्र किया। रणजीत चौटाला अध्यादेश का विरोध करने वाले विचार करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की कि लोग सावधानी बरतें इस वक्त में। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि महामारी में भी किसानों ने किया रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश न आए और तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से सरकार और आढ़तियों के किसानों की फसलों की बिक्री सीधे तौर पर करवाने के लिए विवाद में अब किसानों ने भी सरकार के प्रति मोर्चा खोल दिया है। जाखल और करनाल में आढ़तियों और किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जाखल और करनाल की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरकार के खिलाफ धरना देते हुए आढ़ती और किसानों का ये प्रदर्शन, और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल जो कि जारी है। जाखल और करनाल में आप देख पा रहे ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है। सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ करनाल में आढ़ती और किसानों ने भी विरोध जताया। इस दौरान मेरे सहयोगी ने मंडी प्रधान रजनीश चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको एक बार। आज किसान व आढ़ती करनाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर चढ़कर यहाँ पर लगे चले पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं मंडी प्रधान रजनीश चौधरी। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस लिए वो प्रदर्शन आज ट्रैक्टरों द्वारा कर रहे हैं। जी, सरकार ने अभी एक नया अध्यादेश लाया है जो कहते हैं कि जो फसल है किसान वो कहीं भी बेच सकता है। ये तो पहले भी था कि किसान फसल अपनी कहीं बेच सकता है, लेकिन अब उसमें क्या है कि वो कहते हैं मंडी से बाहर जो फसल बिकेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और जो मंडी के अंदर बिकेगी उसके ऊपर टैक्स है। ये सरकार की एमएसपी से भागने की योजना है ताकि किसान जो है अपना फसल बाहर बेचे और वो आढ़ती उसका दोनों का मन मुटाव हो और ये सारा काम जो मंडी का सिस्टम है खराब हो। सरकार की ये चाल है। हम सरकार से कहते हैं जैसे मंडी सिस्टम पहले था, जो हरियाणा और पंजाब का मंडी सिस्टम है ये सबसे अच्छा मंडी सिस्टम है, ये इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। और जो सरकार कह रही है कि एमएसपी वगैरह जो है इसको भागने की योजना है, हम कहते हैं अगर सरकार एमएसपी से भागेगी तो किसान का काम भला होगा। सरकार की फसल को कौन लेगा? एमएसपी जरूर लागू रहनी चाहिए हर एक फसल पे। तो आज कितने ट्रैक्टरों पर आए यहाँ पर? कहाँ हमारे सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर आए हैं। यहाँ पे हमारे करनाल, कुंजपुरा और तरावड़ी से यहाँ पे लोग आए हैं और निसंग से। बाकी सब जो गोरोंडा वाले गोरोंडा देंगे, असंत वाले असंत देंगे। हर एक अब तहसील किसके नाम ज्ञापन दिया जाएगा? ये भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम। तो आप देख रहे हैं कि ये थे रजनीश चौधरी और इनका कहना है कि जो सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है और किसानों की जो और आढ़तियों की आपसी तालमेल को खत्म करना चाहती है, इसी को लेकर वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों ट्रैक्टरों पर चढ़कर यहाँ पर वो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे ताकि उनकी जो मांगों पर गौर फरमाया जाए। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। आज तो सरकारी आदेशों के खिलाफ कैथल में भी किसानों ने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे सहयोगी मनोज मलिक ने किसानों के प्रदर्शन का जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। कैथल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज किसान कैथल के अंदर ट्रैक्टरों के ऊपर आके सभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी उनकी मांगे हैं। बढ़ते डीजल के दामों को लेकर एमएसपी जो हटाया गया है और जो बड़ी बिजली जो प्राइवेट कर दी गई उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाना किस प्रकार की ट्रैक्टरों की लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। सभी किसान यहाँ पर मौजूद। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो ये मामला है। आज का जो अध्यादेश इन्होंने पारित किया है कोरोना की आड़ में, उसके विरोध में जो हमारी मंडियां तोड़ने का इन्होंने काम किया है और आढ़ती किसान भाईचारा तोड़ने का काम किया है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
आगे की 20 तारीख को नीम साहिब गुरुद्वारा में हमारी पूरे हरियाणा के संगठनों की मीटिंग है, उसकी आगे रणनीति बनाएंगे। कहाँ जा रहे हो? और डीसी साहब की ज्ञापन देंगे। जी बिल्कुल, देखिए किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो आगे की मीटिंग रखी गई है 20 तारीख को गुरुद्वारा नीम साहिब में, उसको लेकर ये मीटिंग की जाएगी और आगे की जो रणनीति तैयार की जाएगी। और अभी ये जो कैथल के जिला उपायुक्त है उनको ज्ञापन देने के लिए ये पहुंचे हैं और ज्ञापन देकर जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में किसान को मजबूर ना होना पड़े और सड़कों पर ना आना पड़े। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो किसानों की परेशानी एक तरफ तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, आपको ये बड़ी जानकारी दे कि किसानों के समर्थन में आई कुमारी सैलजा। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने समर्थन किया। तीनों अध्यादेश को किसान विरोधी उन्होंने बताया। केंद्र सरकार अध्यादेश वापस ले, ये कहती हुई कुमारी सैलजा यहाँ पर बढ़ाई गई प्रीमियम राशि वापस ली जाए, उन्होंने ये मांग की है। फसल बीमा योजना के तहत बढ़ी है प्रीमियम राशि। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे किसानों की नाराजगी एक तरफ, तो वहीं अब जो सियासत है वो भी खूब देखने को मिल रही है। तीनों अध्यादेश को किसान विरोधी उन्होंने करार दिया है। केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी कुमारी सैलजा यहां पर करते हुए आपको ये बताएं कि किसान इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा ये मांग कि ये जो अध्यादेश है उसे वापस ले सरकार। और अब कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वो किसानों के समर्थन में आ चुकी हैं। तीनों अध्यादेश को उन्होंने किसान विरोधी बताया। चलो अब आगे बढ़ते हुए कोरोना की कहर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो करनाल में बढ़ते हुए 21 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 21 नए लोग जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव हुए हैं। वकीलपुरा सदर बाजार में आपको बताएं कि 6 मरीज मिले। शिव कॉलोनी में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सेक्टर 9 पुलिस लाइन से 2 मामले यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि अशोकनगर में भी 2 मरीज मिले हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल इन तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर लगातार हो रही है। तो वहीं चरखी दादरी से भी कई नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। 5 नए मामले चरखी दादरी से रिपोर्ट हुए। जिले में आपको बताएं लगातार बहुत तेजी के साथ जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती हुई 32 केस इस वक्त एक्टिव हैं, जिनका फिलहाल जो इलाज है वो चल रहा है। कोरोना के 80 लोग हालांकि ठीक हुए, लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब। और एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया। ब्रेक के इस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त की 25 बड़ी सब कुछ